expertise that they have put into this. This is a very young company. But the thing is that, also the know-how that is there available right now, I think it's not that difficult to match it if your heart is in the right place. And I'm just telling you, I mean, he's giving you the scientific, the background. I'm just telling you from the perspective of just singing it, So if you just take the microphone and you sing through or speak through it, you'll know the frequency response is just the same. Because the reason why I'm asking these questions to both of you all, because usually what happens is that the artist decides like what he wants, many times. So and his saying that, man, I felt very good singing on this microphone, makes a huge amount of impact with a lot of singers. Yeah. But similarly, what happens with a lot of sound engineers, okay, they will always say, man, what is the frequency response? The frequency is, oh, that 2K is little high. My sound engineer did the same thing. I'm telling you. So that kind of analysis would actually kind of help two different. But that's what. See, brother, music is all about this. Yeah. इतना सोचने लगेंगे तो फिर music थोड़ा बहुत. So it's all about this. I think it from here. I'm sure there are lots of people sitting over there. But I'll tell you one, bro, you know it. All true guys, true musicians and true engineers, they all think from here only. They're not really, if it feels here, okay here, everything is fine. In fact, the very show that Palazda was talking about, the show at Phoenix Mills, that's how we went inside. I came inside, Vikram Bhai is the sound engineer for Euphoria. I gave him, can you please test this mic? If you feel it's fine, then we'll keep it up on stage, otherwise we'll pull it down. And then that show happened on the circle microphone. Yeah, I sang the entire song. I sang the entire show, honestly, without even knowing I'm singing on a circle. So in the end, he's asking me, are you happy on stage? I said, yeah. Do you like the microphone? I said, yeah. I mean, aisa kya ho gaya microphone mein? Then I got to it was a circle. Yes. What is the biggest hurdle in terms of technology for the live music industry in India? I think the biggest hurdle in terms of technology, there's no hurdle in terms of technology. The biggest hurdle for live music in India is event management. That's the biggest hurdle. The problem is this, that every event manager / client says, I'm going to say spend 10 rupees. So if I'm going to spend 10 rupees, if the artist is charging 9 rupees, I'll get 1 rupee worth of sound. If the artist is spending 9 rupees 50 paise, I'll get 50 paise per sound. If the artist is charging 10 rupees, artist will get his sound himself. That is the biggest hurdle. The technology is out there. Everybody, if you see, they're great people who got a lot of sound. Also, then what happens is that when the support system comes in, they have their own ways of cutting down. They'll say, okay, fine, I won't send this, I won't send that. I'm cutting down. But that's what I'm trying to say. This is the point with this microphone. These guys are pricing it at 19 grand without making any compromises. It's like when I get on stage, I'm not bothered who's paying me how much of money. You understand? It's about getting on stage and giving people the time of their lives. So it doesn't make a difference. So answering your question, the biggest hurdle is actually the guys who are the event managers, the artist managers, and the clients. Because they want, I'm going to spend this much of money and I don't care about anything else. Even now, you'll be amazed, people don't know what a sound check is. They don't know. They think it's about coming, plugging in, and playing. Because there's so many artists who actually do that. पीछे तो CD चल रहा होता है, so who cares? मतलब Honey Singh's entire band is a CD. David Guetta recently lost his pen drive and he couldn't do a show. You understand what I'm saying? So then people think, what's the big deal? Why do you need so many amplifiers and why do you need a good microphone and why do you need anything? You just have to come and dance, whatever, sing or whatever it is. So that's the biggest. It's a mindset which is the biggest hurdle. So that's why I think why you guys are playing such a big role is that it's important and all of you really start educating people. That is important. It's very, very important. And then there are people who are coming and just lip syncing. It's important that everybody starts making a noise about it. A Britney Spears gets on stage and gets, pelted with eggs because she was lip syncing. You understand? It's happened in Australia. Sydney में लोगों ने उसको अंडे मारे थे. हिंदुस्तान में क्या होता है यार? हिंदुस्तान में nobody is bothered. They are so bothered dancing. They're only, they don't care कि हो रहा क्या है. In fact, they are very happy कि कितना सुर में गा रहा है. You understand? So I think it's important that all of you start doing it. There's so much of criticism about so much in the press right now. Every blogger and every Facebook guy he himself is a Times of India himself only. So if everybody knows it,
and people like you are going to carry it forward. That we need technology, and for that technology we need to be aware. If we are aware, सबसे aware, everything will be fine. We'll have better music, we'll have better performances, we'll have better gear. So here are people who are coming in with the gear, even when there is, what do we hear? We hear baby doll here. So you understand what I'm saying? So who want to go first? You want to go? Mumbai. पहले सबसे पहले तो आपकी जानना चाहिए ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं आप क्योंकि कितने बड़े फैन हैं और कितना यूज़ करते हैं आप जो नए नए इंस्ट्रूमेंट आते हैं। यार मैं ऐसे कोई स्पेसिफिकली गैजेट फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है, जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी मुझे ज़रूरत है उसकी तो मैं डेफिनेटली फ़ैन हूँगा। मैं आपकी तो देखूँ कैमरे में देखूँ आपकी तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी गैजेट यूज़ में आते हैं ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि अच्छी चीज़ें आएँ, हम उसको यूज़ करें, बट एट द सेम टाइम मेरा हमेशा से ये सपना रहा है कि हम लोग जो भी गैजेट यूज़ करें या जो भी चीज़ें यूज़ करें, आई थिंक वो सब की सब हिंदुस्तानी होनी चाहिए, मेड इन इंडिया होनी चाहिए और मेक इन इंडिया होनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ, हमेशा से मेरा मन है कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं क्योंकि मैं एक परफॉर्मर भी हूँ, मैं एक डॉक्टर भी हूँ और दोनों चीज़ों में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। मैं एक सर्जन हूँ तो उसके अंदर डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है, और मैं एक सिंगर हूँ तो उसके अंदर एक डिफरेंट तरह की टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो टेक्नोलॉजी की वो होती है वो ये है कि जो भी जो शिल्पी है, जो काम कर रहा है, उसके लिए वो चीज़ बिल्कुल सही होनी चाहिए। शायद किसी और के लिए वो चीज़ इतनी सही नहीं है, मगर अगर आप उस चीज़ के साथ कंफर्टेबल हैं तो वही आपको चाहिए। सिंगिंग के अंदर आपको ऐसा सामान चाहिए जिससे आपके जो आप कहना चाह रहे हैं, जैसे आप गा रहे हैं, उससे जो आपके सुनने वाले हैं उनका मन अच्छा हो, और जब आपको डॉक्टरी में जो आपको चीज़ें चाहिए उससे जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर रहे हैं, जिसको आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका तन ठीक हो, उसका मन के साथ तन भी ठीक हो जाए। तो आई थिंक दैट इज़ द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और काइंड ऑफ आई वुड से दिस काइंड ऑफ सपोर्ट जो मेरी ज़िंदगी में जिसका एक स्थान है। Absolutely. तो लोग भी पसंद करते हैं क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी बिल्कुल, यूज करने का, बिल्कुल। एंड कहीं ना कहीं इंडिया में कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे रह चुकी है। Correct. तो उसके बारे में आपका क्या करेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया पीछे इसलिए रह चुकी है क्योंकि हमारे जितने भी IITs या से जो ग्रेजुएट करते हैं, बिकॉज एक समय आया था इस देश में जब सबको ये बात लगी कि यार पैसा बनाना बहुत ज़रूरी है, तो सबके सब कैपिटलिज्म के पीछे भागने शुरू हो गए। तो जितने भी IIT के ग्रेजुएट थे सब IIMs में चले गए या फिर किसी और MBA इंस्टीट्यूट में चले गए, और वो इवेंचुअली या तेल बेच रहे थे या फिर मेकअप का सामान बेच रहे थे। बहुत दुख की बात है। अब जैसे लोग सब कहेंगे भी पलाश तुम एक डॉक्टर हो, तुम गाना क्यों गाते हो, बट पॉइंट इज दिस कि मैं डॉक्टरी भी करता हूँ। मेरा यही पॉइंट है कि जितने भी हमारे देश के जो ब्रेन था उसका एक ड्रेन हो गया, वो सब के सब या US चले गए या यूरोप चले गए, कहीं भी चले गए, और वहाँ पे जाके उस टेक्नोलॉजी के वही लोग डेवलप कर रहे हैं, चाहे वो नासा है, चाहे वो सिलिकॉन वैली है, जहाँ भी है। अगर आप देखेंगे सिर्फ हिंदुस्तानी ही है वहाँ पर जो कि इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। ये चीज़ चाइना वालों ने थोड़ा सा हार्डनेस कर लिया। उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने कोशिश की कि वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने इंजीनियर्स को एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम दे दें जिसकी वजह से वो चाइना में ही रह के बहुत अच्छा काम करें। अगर ये चीज़ हमारे देश में भी हो जाती, मैं पॉलिटिकल कोई कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, बट ओवर द लास्ट 15-20 ईयर्स अगर ये चीज़ हो जाती तो अभी तक हम लोग सब कुछ अपने देश में ही बनाते। आई एम वेरी वेरी होपफुल विद आवर न्यू प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक बहुत ही डायनेमिक इंसान है और पहली बार आई थिंक हिंदुस्तान को एक लीडर मिला है। अब काफ़ी लोग कहते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ें बोलते हैं जो वो करते नहीं हैं, पर एटलीस्ट बोलते तो हैं। इससे पहले वाला प्राइम मिनिस्टर तो बोलते ही नहीं थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम लोग इस चीज़ को फॉलो करें। हमारे देश में लोग अपने अपने जो उनकी काबिलियत है उसको वो समझें और सराहें और अपने आप ही बनाएं। मेरे हिसाब से अगर ये चीज़ होगी तो अगले 5 साल में जिस तरह का ये माइक्रोफोन निकला है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में बनेंगी ज़रूर। मैं एक्चुअली 2-3 चीज़ों के बारे में बोलूँगा।
पहले तो मुझे लगता है कि जो एक मेक इन इंडिया का जो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, मैं फिर से ये बोलूँगा वो बहुत ज़रूरी है। इवेंचुअली वो कितना सक्सेसफुल होता है या नहीं होता मुझे पता नहीं, एक साल बहुत कम समय होता है किसी को भी परखने का। बट एट द सेम टाइम ये जो एक जो बोलते हैं ना एक एक उन्होंने हुंकार बोली है कि ये चीज़ हम करेंगे, प्लस पूरी दुनिया में जाकर इस चीज़ के वो इन्वेस्टमेंट्स लेकर आए हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ में इंटरेस्टेड होंगे और ज़रूर होंगे, बिकॉज हमारे पास सचमुच एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैपेबिलिटी है। पहले तो मैं ये कहूँगा आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ है जो कि आई थिंक हिंदुस्तानी शायद पिछले 7 साल से भूल गए थे कि हमें अपने देश को साफ रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। हम इस चीज़ को भूल गए थे, इसलिए भूल गए थे क्योंकि ज़िंदगी में क्या होता है कि हम लोग जैसे घर में भी होते हैं, अगर बच्चे होते हैं ना, अगर हमारे पिता या हमारी माँ कोई चीज़ बोलते हैं हम उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बट हमारे पास कभी ऐसा कोई पिता ही था ही नहीं जिसने ये बात कभी बोली कि यार सफाई रखो। हमेशा यही बात होती रहती है कि यार हमने सड़कें बना दी और हमने किसान को देख लिया, बेचारे गरीब को तो सबसे ज़्यादा यही यूज़ करते हैं, उसके लिए कोई नोबडी केयर्स। बट यहाँ पे इंडोर्समेंट करने के लिए उसका नाम जरूर आता है कि हमने गरीब के लिए किया, हमने मजदूर के लिए किया, बट कोई कभी सफाई की बात नहीं करता। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात है। एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊंगा कि 99% जो बीमारियां हमारे देश में हैं वो गंदगी की वजह से हैं। ये साफ हो जाएगा, ग्रेट। सो आई थिंक दीज टू थिंग्स आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड। यार मैं एक तो सर्वेज के बारे में मैं इतना कोई मुझे पता नहीं, क्योंकि अगर 20,000 लोग या 50,000 लोग 1.3 बिलियन के बारे में एक डिसीजन ले लेंगे, इट्स नॉट पॉसिबल। हमारा देश में इतनी डाइवर्सिटी है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि इतने एक सर्वे ही इस चीज़ को बोलेगा। मैं पर्सनली बोलूँगा, मुझे बहुत खुशी है। मैं बोला ना, मुझे लगता है कि पहली बार हमारे देश में एक लीडर है। हमें लगता है कि हाँ एक हमारा एक लीडर है, जैसे दुनिया में शायद बराक ओबामा है या व्लादिमीर पुतिन है, एक लीडर है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ सब में होती हैं, परफेक्ट तो कोई होता नहीं है, और बट एटलीस्ट एक ऐसा इंसान है जो कि आगे देखने की कोशिश करता है और अपने पूरे देश को हिंदुस्तानी होने का एक जो गर्व होता है वो देता है। हाँ, पहले तो मेरी एक फिल्म आने वाली है जिसका नाम है ऐसा ये जहाँ, जिसमें मैं हूँ लीड में एज एन एक्टर। बहुत कम लोग जानते हैं कि आप एक्टर भी हैं। यार मैं ज़्यादा ना मीडिया में बोलता नहीं हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा रडार से नीचे रहना चाहिए, मैं रडार के ऊपर नहीं रहता हूँ। मैं इनफैक्ट ये भी लोग होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज मैंने अपनी पहली सेल्फी खींची, आज मैंने ये वाला कपड़ा पहना। ये क्या न्यूज़ है? मतलब ये बहुत ही ये उनके लिए है जिनके पास एक्चुअली पेपर भरने के लिए और कोई जगह नहीं। जैसे आज भी मैं जो आपके मुखातिब हो रहा हूँ, इसलिए उनको एक सिग्निफिकेंट चीज़ है, एक माइक्रोफोन आ रहा है और जिसके अंदर अगेन आई वांट टू से दिस के ये भी जो अंडरस्टैंडिंग है ये कोई मॉनेटरी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। ये नहीं कि ये लोग मुझे कुछ पैसा दे रहे हैं या कुछ। सचमुच मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देना चाहिए, और अगर मुझ जैसे लोग नहीं बढ़ावा देंगे तो कौन देगा। तो पहली चीज़ है ये ऐसा ये जहाँ, जो कि एक बहुत सेंसिटिव और बहुत सेंसिबल फिल्म है। एक न्यूक्लियर फैमिली के बारे में है जो कि इस शहर में फंसा हुआ है। हम सब इस शहर में फंसे हुए हैं, हम सब के सब। आई डो नॉट नो आप लोग बॉम्बे को बिलोंग करते हैं कि नहीं। मैं बॉम्बे को बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। सो मेरी माँ जम्मू की रहने वाली है, मैं बनारस का रहने वाला हूँ। मैं छोटे शहर का रहने वाला हूँ जो कि फिर दिल्ली में आया, फिर बॉम्बे में आया। बट जो यहाँ का एक जो कॉन्क्रीट जंगल है वो देख के मुझे बहुत अजीब लगता है, और मुझे हमेशा मन करता है कि मैं अपने रूट्स को वापस जाऊँ। और ये कहानी बहुत सारे लोगों की है। तो ऐसा ये जहाँ इसी बारे में कहानी है, इन्वायरमेंट के बारे में। तो मैंने भी सफाई की बात की, इस फिल्म में उसके बारे में बात की गई है। तो उसके अंदर म्यूज़िक यूफोरिया का है, सारे गाने हमारे हैं। तो बहुत दिनों बाद हमारी एक एल्बम भी होगी और सारे गाने हमारे होंगे। ये हमारा इमीडिएटली हमारा अगला प्रोजेक्ट है। इसके साथ जो बाकी अनाउंसमेंट होंगे वो मुझे अलग अलग करने पड़ेंगे डिफरेंट टाइम। बॉलीवुड का तो लाइक आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बॉलीवुड में कई सारे सेलिब्रिटी है जो हॉलीवुड में जा चुके हैं, जो हॉलीवुड में वर्क करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो ये मानते हैं कि हॉलीवुड का फेम एंड टेक्नोलॉजी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट इज तो लाइक आप किस तरह से उस चीज़ को देखिए, उस चीज़ को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। डेफिनेटली मैं उसको देख के एडमायर करता हूँ। मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो अभी भी उस लेवल पे सोच रहे हैं, काम करने की कोशिश कर रहे हैं।
जो कि ये इंडस्ट्री अभी तक कर नहीं पाई है। और ये इंडस्ट्री इसलिए नहीं कर पाई है, नॉट बिकॉज कि यहाँ पे टैलेंट की कमी है, बट गलत लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं ये मानता हूँ कि अगर हम में वो काबिलियत है, वो इंटेलिजेंस है, तो आई थिंक हम लोगों को यहीं पे रहकर उस चीज़ को मैच करने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं कर सकते, हम ज़रूर कर सकते हैं, बट जो सही लोग हैं उनको अगर सही तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेरा एक बैंड है और हिंदुस्तान का पिछले 16-17 साल में शायद एक ही बैंड है जिसने इस चीज़ को इतने दिनों तक चलाया है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सपोर्ट होती, इंडस्ट्री की सपोर्ट होती और इंडस्ट्री सारा का सारा पैसा बॉलीवुड सिंगर्स में नहीं डाल देती, तो मेरे से और भी बहुत सारे बैंड होते हैं। और हम ही एक बैंड है जिन्होंने जाके यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में परफॉर्म किया है। मेम्फिस पे हम लोगों ने देवर 69 अमेरिकन बैंड्स और एक ही इंडियन बैंड था जहाँ पे हमने जाके परफॉर्म किया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक इंटरनेशनल बैंड इंडिया से हो सकता है और हमें अंग्रेजी में गाने की जरूरत नहीं है, हमें हॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान में रह के ये चीज़ कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। और भी लोग कर सकते थे, बट वही है, सपोर्ट नहीं मिला। तो अगर सपोर्ट मिलेगा, मैं जानता हूँ कि जिस तरह की हमारी काबिलियत है, जिस तरह का हमारा टैलेंट है, हमारे यहाँ पे बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि लोग अभी तक कहते थे कि हिंदुस्तान को गवर्नमेंट नहीं भगवान चलाता है, तो भगवान के भरोसे ही हम लोग इतने आगे पहुंच गए। ये सोचिए अगर अच्छी गवर्नमेंट हो और अच्छा सपोर्ट हो तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। पता कि आखिरी एक सवाल, आपका गाना आपकी आवाज़ में सुनने में बहुत दिन हो गया, अगर कोई एक लाइन या 2-3 लाइन आप गुनगुनाना चाहेंगे तो सोच ले, 1 या 2 या 3 कितना होगा। कोई एक गाना, एल्बम तो अब सुनाई नहीं देते अब बिल्कुल ही। बिकॉज वही ना, बिकॉज वो फिल्मों ने सब कुछ, और अगर आपने हमारी एल्बम सुनी तो आपको डिजिटल पे जाना पड़ेगा। क्या सुनाऊं आपको यार, जो भी आपका पसंद का। आपको जो हमारी नई फिल्म आने वाली है, अभी तक किसी ने सुना नहीं है तो मैं आपको सुनाता हूँ। वही सुबह वही शाम है, वही चेहरे वही नाम है, वही धड़कन वही रोशनी भी, अल्लाह यही राम है। फिर भी क्यों अजनबी, फिर मैं नहीं, फिर है क्यों ये मकान घर नहीं, सौतेला सा ये शहर, सौतेला है ये मगर, फिर भी अपना है ये जहां। 100 जगह जाए डगर, 100 वजह जाने की पर, फिर भी जीना अब है यहाँ, सौतेला शहर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। This is something I should promote. I think just not one. I would speak about at least 3 or 4 to develop this kind of a technology. Right. Second, it's on par with all the international microphones. Okay. Put on stage, it gives me the same results as an international As any microphone. international microphone. Okay. Third, very very important. With that kind of a technology and that kind of this is much lesser than any international microphone. Yeah, I just saw that it's 19,000. It's 19,000, which is very very affordable by the upcoming singers.